میں کمنٹس پڑھتا گیا اور آنسو میری آنکھوں سے بے اختیار بہہ نکلی۔ آصر جٹ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں جب انہوں نے قرآن کریم کے متعلق سوال کیا، اس جواب کی ویڈیو پہ ہزاروں کمنٹس ایک ٹاپ پر آئے اور لوگوں نے بیان کیا کہ کیسے اس جواب نے ان کے دل کی کیفیت، ان کی زندگی بدل دی۔ میں جانتا تھا کہ نہ میرا علم اور نہ میرا عمل اس قابل ہے کہ کسی کے دل کی کیفیت بدل سکوں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، پر میرے لیے یہ اعزاز بھی بہت تھا کہ اس میں میری زبان، میری آواز استعمال ہو۔ آج آپ لوگوں کو ویڈیو سے پہلے یہ کمنٹس دکھانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ یہ ویڈیو پورے دل لگا کے پوری دیکھیں، شاید آپ کا دل بدل سکے، شاید آپ کی بھی کیفیت بدل سکے۔ آئیے پہلے چند کمنٹس دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ ویڈیو۔ میرے اللہ نے قرآن مجید میں میرے لیے کیا کہا ہے؟ میری خواہش تھی کوئی یہ سوال مجھ سے پوچھے۔ عزیز صاحب ایسے ہے، سب سے پہلے تو قرآن کریم کا اگر کوئی بھی اپنے آپ کو عالم کہے نا، تو میں کہتا ہوں یہ بہت بہت ایگزاجریشن ہوگی۔ قرآن کریم کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، اس کا عالم بہت مشکل ہے، وہ نالج نہ ختم ہونے والا ہے۔ میں ہر دفعہ ایک سورت پڑھتا ہوں، ہر دفعہ کچھ نیا اس سے سیکھتا ہوں۔ جی تو قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ہماری جو شروعات کی سورہ بقرہ میں، اس واقعے سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جی تو فرشتوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے میں پلک جھپکنے کی دیر نہیں کرتے، پر انہوں نے یہاں پہ ایک سوال پوچھا کہ اب یہ تو زمین پر فساد مچائے گا، خون بہائے گا، آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے تو ہم ہیں۔ تو یہ بڑا جینون بھی ہے، فرشتوں جتنی عبادت ہم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ اچھا سر، انہوں نے کیسے کہا کہ یہ فساد بنا؟ انہیں کیسے پتا تھا؟ یہ اپنے اندر ایک بہت لمبی سٹوری ہے، یہ آدم سے پہلے ہم چلے جائیں گے؟ یہ سٹوری پھر بہت لمبی ہو جائے گی، اس کو کسی اور دن کے لیے یہ سوال بہت ضروری ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی یہ سوال پوچھے۔ مطلب وہ سوچتا ہے قرآن کریم پر کہ فرشتوں کے پاس غیب علم تو نہیں ہے نا، تو انہوں نے اللہ کچھ اب تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، ڈفرنٹ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جنات تھے، جنات کو دیکھا، پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جنات نہیں سر، جنات کو اور جنات کا انسان کا کمپیریزن کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھایا، پھر فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم یہ بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک، ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ نام بتا دیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے پاس علم ہے؟ کیا ہوا یہاں پہ؟ یہ تو ہمیں پورا مقصد ہمیں بیان کر رہے ہیں، جیسے قرآن کریم ہمیں وہ مین پوائنٹ بتا رہا ہے، مین نقطہ بتا رہا ہے۔ کیا ہوا یہاں پہ؟ مجھے اس کی سمجھ آئی پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ سے۔ پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ کون ہے؟ وہ کینساس یونیورسٹی میں میتھس کے پروفیسر ہیں۔ وہ کرسچن تھے، ایتھیسٹ ہوئے، اور ان آیتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے جس پہ وہ مسلمان ہوئے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک کیپیبلٹی دی گئی ہے، اور وہ ہے لرننگ۔ کیا؟
लर्निंग, सीखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? इंटेलिजेंस की। इंसान के पास ये खुसूसियत है कि ये लर्निंग कर सकता है, इसके पास इंटेलिजेंस है, ये और चीजें सीखेगा। पहला लफ्ज जो नाजिल हुआ आसिफ साहब, वो क्या था? इकरा, पढ़ो, सीखो, इंटेलिजेंस इस्तेमाल करो, अकल इस्तेमाल करो। ये इस वाक़े का निचोड़ है, आप एक लर्निंग बीइंग है, और इस वाक़े को आगे ले जाके जो प्रोफेसर डॉक्टर जेफरी लैंग ने बयान किया वो मैं बयान करता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताई, एक आप समझ लें, एक है इंटेलिजेंस और लर्निंग है, और उसके मैं आपको कुछ सबूत एक दफा बता दूं कि क्यों है। पहली बात जो कुरान करीम से आपने उठानी है, रिसर्च है, लर्निंग है, इंटेलिजेंस है। मैंने आपको सूरह अनफाल की भी आयत बताई 22 नंबर। बदतरीन जानवर किसको कहा? वो गूंगे बहरे जो अकल से काम नहीं लेते। सूरह बकरा में ही कहा अल्लाह ताला ने कि खैर कसीर वो है जिनको हिकमत अता हो गई। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला जब ये कुरान करीम बयान करता है दोज़ख के हाल कि उन्हें किस वजह से दोज़ख में डाला गया, तो वो क्या कहेंगे जवाब में आपको पता है? वो कालू लौ कुन्ना नस्मौ औ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, कि अगर हम सुनते और अकल से काम लेते तो हम दोज़ख वालों में से ना होते। जवाब में कहा जाएगा फातरफू बिज़ंबिहिम। अभी आपने अपने 80 गुनाह का इकरार किया। जरा सोचें नासिर साहब, गुनाह ये नहीं कहा गया कि आपने ये किया वो किया, गुनाह ये कहा गया कि आपने अकल नहीं इस्तेमाल की। ये वो मेजर गुनाह कहा गया है। खैर कसीर इसे कहा गया है, जब इसे नहीं इस्तेमाल किया उसे बदतरीन जानवर कहा गया है। ये वो पहली चीज है जो आपने कुरान करीम से उठानी है कि आपने इंटेलिजेंस इस्तेमाल करनी है, आपने रिसर्च इस्तेमाल करनी है। अगर आप गूंगे बहरे होके अंधे होके किसी की पैरवी सिर्फ शुरू कर देंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। आपने कुरान करीम पर तदब्बर करना है। मैं मस्जिद में कुछ देर के लिए बैठता हूं आसिफ साहब, तो एक हदीस बयान हो रही थी कि एक साथ का, एक लम्हे का गौर फिक्र। क्या आसिफ साहब जरा सोचें कि ये चांद ऊपर है, गिरता क्यों नहीं है? इसे तो गिर जाना चाहिए, ऊपर जो फेंकते गिर जाता है। ये सूरज गिरता क्यों नहीं है? ये मैं कैसे बड़ा होता जा रहा हूं दिन ब दिन? ये मैं दरख्त एक सीड रखता हूं, बीज रखता हूं, उसमें से 1000 किलो का दरख्त निकल आता है, मिट्टी वही रहती है, जगह वही रहती है, कहां से आए 1000 किलो? एक लम्हे का जब मैं गौर फिक्र करता हूं, आपको पता है उसका कितना सवाब है? 60 साल की इबादत का। एक जगह है 80 साल की इबादत का, सिर्फ सोचने पर, सिर्फ ये गौर फिक्र किया आपने। इतना इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस है, इतना रिसर्च। हम पूरी दुनिया में सबसे पीछे क्यों हैं? नहीं, अपने मेन पांच से जितने साइंटिस्ट कोट किए मुझे सब बोल रहे हैं, पर इनकी बुनियाद किसने रखी? इसकी बुनियाद रखी इब्न हैशम ने, इब्न सीना ने, अल-खरज़ामी ने। हमारे साथ 1000 साल पहले क्या हुआ जरा सोचे ना। हमें क्यों इस ट्रैक से हटाया गया? कुरान करीम का डायरेक्ट हुक्म है, और ये इस्तेमाल करना कहां करनी है ये पता है आपको आसिफ साहब? अल्लाह ताला बड़ा साफ बयान करते, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी। सूरह बकरा की 164 नंबर आयत है आसिफ साहब, वो कहती है बेशक आसमान और जमीन की पैदाइश में, रात और दिन के बदलने में, वो किश्तियां जो पानी में तुम्हारे फायदे के लिए चलती हैं, वो पानी जो हमने आसमान से नाजिल किया और उससे मुर्दा जमीन को जिंदा किया, वो तमाम चरिंद परिंद जो इस जमीन पर हैं, ये हवाएं, ये बादल, इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। इस आसमान और जमीन की पैदाइश पर सोचना था, हमने सोचा नहीं। रात और दिन के बदलने पर सोचना था, पानी पर सोचना था, चरिंद परिंद पर, हवाओं पर, बादलों पर, यानी इस पूरी कायनात पर सोचना था। ये हुक्म है सूरह बकरा 164। मैं जो ये सारी बातें कोट कर रहा हूं, कुरान करीम कोट कर रहा हूं ना, सूरह बकरा की 164 नंबर आयत, जो भी सुन रहा है खोले देखे, ये हुक्म है ना अल्लाह ताला का। कुरान अल्लाह ताला की किताब है, हमने फॉलो किया नहीं किया ना, तो मतलब हम अपने डी ट्रैक हो गए ना उससे। आपने मुझे कहा कि कुछ चीजें बता दे जो कुरान करीम से उठाए, तो पहली चीज जो आपने उठानी है वो ये है अकल का इस्तेमाल करना, रिसर्च, सोचना, समझना, अल्लाह की कायनात पर गौर फिक्र करना, इतना बड़ा। दूसरी चीज, और ये वो सूरह बकरा के मैं पहले रुकू में आपको समझा रहा था, पहला ये पॉइंट। दूसरा ये पॉइंट आया कि मना किया गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि उस दरख्त के करीब मत जाना, और वो गए उसके करीब। इससे हमें क्या, ये क्यों ये वाकया बार बार बयान हुआ हमारे लिए, कि उससे हमें दूसरा सबक मिलता है कुरान करीम का, और वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह ताला का हुक्म आपके पास आएगा, मगर आपके पास फ्री विल है, आपके पास इख्तियार होगा। आप चाहे तो उसे माने और आप चाहे तो उसे ना माने। आपको इंटेलिजेंस दी गई और आपको एक और साथ चीज दी गई, फ्री विल। इंटेलिजेंस है आपके पास, आपकी मर्जी दिन रात स्क्रोलिंग पे लगा के बेकार में उसे जाया कर दें, या उसे इस अल्लाह की कायनात को समझने पर लगा दें, है ना आपके पास फ्री विल। तो ये आपके पास इख्तियार भी दे दिया गया, दो चीजें दे दी गई आपको, इंटेलिजेंस भी दिया गया और फ्री विल भी दी गई। आपकी मर्जी है, एंजॉय करें सारी लाइफ जिंदगी को, फ्री विल है आपके पास। पर यह है कि जो आपको फिर एसेट दिया गया उसके बारे में पूछा जाएगा, और ये भी है कि आप इसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस कायनात पर सोचें, समझें। दो चीजें आपको समझ आ गई यहां से, अब इससे थोड़ा सा आगे, इन दो के बाद तीसरी चीज को समझें। आपने कायनात पर सोचना शुरू किया और आपके पास फ्री विल भी थी, आपने वो फ्री विल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस कायनात को समझने पर लगा दी। तो जब आप कायनात को समझते हैं और हर चीज के एंड पे जाते हैं, तो आपको एक चीज मिलती है कि कोई है जो इस टाइम एंड स्पेस से बाहर है, जिसने इसे क्रिएट किया है। जाहिर कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। वही खुदा है। ये हर साइंसदान यहां तक पहुंचेगा,
मुस्लिम होगा, नॉन मुस्लिम होगा, वो जब इस कायनात पर सोचेगा ये सोफा किससे बना, लकड़ी से बना, लकड़ी किससे बना, कार्बन से बना, कार्बन किससे बना, स्टार से बना, स्टार्स किससे बने, वो उस इनिशियल हाइड्रोजन से बना, हाइड्रोजन किससे बना, वो बिग बैंग से बना, बिग बैंग किससे बना, वो सिंगुलैरिटी से बना, वो सिंगुलैरिटी कहां से आई? स्टीफन हॉकिंग कहता है कि मुझे नहीं पता, एथियस्ट कहता। साइंस कहती है कि 10⁻⁻43 सेकंड से पहले क्या हुआ हम नहीं जानते, हमें नहीं पता वो कौन था, क्या था, कहां से आया ये, पर कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा। ये इतनी परफेक्ट यूनिवर्स जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये जर्रा बराबर भी डिफरेंट होती तो पूरी कायनात ना होती। किसने इसे इतना परफेक्ट रखा हुआ है? हम क्यों, हमारी जमीन क्यों गोल्डी लॉक जोन में है कि ना धूप के इतना करीब है कि हम जल जाए, ना इतना दूर है कि हम बर्फ हो जाएं? क्यों हमारे पास जुपिटर है जो हर एस्ट्रॉयड हम पर आता है उससे हमें बचा लेता है? क्यों हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, हीलियोस्फीयर है, मैग्नेटोस्फीयर है, लोकल बबल में हम लोग, किसने हमें रखा हुआ है? इतना परफेक्ट फाइन ट्यून निजाम किसने बनाया है? सिंगुलैरिटी कहां से आई है? कहां से सब कुछ शुरू हुआ? मैटर तो, ये लकड़ी तो मैटर से बना, एटम से बना, एटम नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग से हम लिविंग बीइंग कैसे बन गए जो बैठकर ये सोचता है कि ये सब कैसे बना? ये कॉन्शियसनेस, ये सोच कहां से आई यासिर साहब? जब आप इस पर सोचना शुरू करेंगे तो आप उस पे जो पहुंचेंगे जिसे एरिस्टोटल प्राइम मूवर कहता है, जिसे फर्स्ट मूवर कहता है कि कोई है जिसने सब शुरू किया है, तो आप पहुंचेंगे एक जात तक। और वो आपसे मांगता क्या है? इस पे आपकी थर्ड चीज आएगी। वो आपसे क्या मांगता है यासिर साहब? कभी सोचा है? वाह 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 वाह। फिर हम ये सोचते हैं कि वो हमसे मांगता क्या है। अब मैं आपकी बात से रिलेट कर पा रहा हूं कि वो क्यों हमें हुक्म देता है कि रिसर्च करो, क्योंकि जैसे जैसे हम रिसर्च करते जाएंगे हम अल्लाह के करीब होते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा वो आलमीन का रब, कितना बड़ा है, जिसने एक सिंगुलैरिटी से, एंट्रोपी तो ये कहती है कि धमाका होगा तो सब कुछ खराब होता जाएगा। एंट्रोपी का उसूल ये है ना सर कि ये रूम सजा हुआ है तो ये वक्त के साथ खराब होता जाएगा, इसका डिसऑर्डर होता जाएगा, ये सेट नहीं होगा और डिसऑर्डर होता जाएगा इसमें। पर एक धमाके से हम जैसे इंसान बन रहे हैं जो सोच रहा है और ये सारी चीजें बन रही हैं। कैसे तरद्दुद के बाद मैं और आप जो बने हैं, इतनी सब चीजों के बाद होने के बाद जो हम यहाँ बैठे हैं, उसके अंदर फिर ख्याल उसी की तलाश का है। हाँ, हम कुछ तो ढूंढ रहे हैं। हाँ, अब मैं इस पे एक और बहुत जबरदस्त बात बताता हूँ। थॉट्स कैसे बनते हैं? कॉन्शियसनेस, आपके अंदर जो एहसास है मैं हूं, ये कहाँ बनते हैं हमारे जिस्म में? हम तो एटम से बने ना, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है और एटम वो जो है वो क्वार्क से बने। उसमें ये एहसास, ये सोच कहां से आ रही है? नहीं पता साइंस को। न्यूरॉन्स तो वेट न्यूरॉन्स है, वो ये सोच थॉट कैसे बनाते हैं, ये कहां से आ रही है? नहीं पता हमें। यही तो कर नहीं पा रहा है एआई भी, नहीं समझ पा रहा उसे, वो फीलिंग नहीं कर पा रहा। वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, वो फील नहीं कर सकता चीजों को। हमारे पास मेटा कॉग्निशन है आसिफ साहब, उनके पास नहीं है। पर मैं फिर अपने ट्रैक पे वापस आता हूं। मैं तीसरी चीज आपको बताने लगा था, पर वो पूरी हमने जर्नी की, कायनात को समझा तो हमें पहुंचे कि कोई है जिसने ये बनाया है। और हर अनबायस्ड साइंसदान जो है, हर अनबायस्ड, वो इसी कंक्लूजन पर पहुंचा है कि कोई है। अब मैं कुरान करीम की तरफ आता हूं। जब आपने पहचान लिया कि रब है, उसने मुझे इंटेलिजेंस दी है, उसने मुझे फ्री विल दी है, वो मुझसे चाहता क्या है? आपको पता है सूरह माउन क्या कहती है? आया तुमने उस शख्स को देखा है जिसने दीन को झुठला दिया है, दीन का इनकार कर दिया है? वो कौन है आसिफ साहब? जो यतीम को धक्के देता है, जो मिस्कीन को खाना खिलाने की तलकीन नहीं करता। तो तबाही ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं और जरूरत की चीज भी मांगने पर नहीं देते। किसका एहसास हो रहा है यहाँ पे? यतीम का। किसका एहसास हो रहा है यहाँ पे? मिस्कीन का। किसका एहसास हो रहा है यहाँ पे? जरूरतमंद का। यानी हर वो शख्स जो जरूरत में है, उसकी जान, हर इंसान का जान का, माल की, इज्जत का ख्याल रखना। आपको पता है सूरह बकरा में एक आयत है, आयतुल बिर, नेकी की आयत। तो क्या कहती है? वो कहती है कि लैसल बिर्रा, नेकी सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना चेहरा मशरिक और मगरिब की तरफ मोड़ ले, क्योंकि ये उस टाइम आई थी जब किबला अव्वल से हम खाने काबा की तरफ शिफ्ट हुआ था। नेकी ये है कि आप ईमान रहे अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के पैगंबरों पर, और वो माल जो आपको बहुत प्यारा है उसे खर्च करें पहले अपने कराबतदारों पर, रिश्तेदारों पर, फैमिली पर, बच्चों पर, बीवी पर, बहन भाइयों पर, माँ बाप पर, उन पर खर्च करें माल जो आपको प्यारा है। वातल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, फिर यतीमों पर, कम्युनिटी गुडनेस, यतीमों पर, फिर मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, वो जो कैद में है। फिर उसके बाद कहा कि आप नमाज पढ़ें और ज़कात। आप समझ रहे मेरी बात को? सूरह बलद ने कहा कि हमने आपको 2 घाटियों का रास्ता दिखाया, पर आपने मुश्किल घाटी का रास्ता नहीं चुना। वो क्या है? फिर सेम बातें, यतीम, मिस्कीन, किसी की मदद करना, सबर करना, रहम करना। क्यों आसिफ साहब? क्योंकि आपके अंदर एक लड़ाई चल रही होती है आसिफ साहब। एक आपका नफ्स है जो सब कुछ अपने लिए चाहता है, एक आपके अंदर वो रूहानी ताकत है जो आपको कहता है कि नहीं अल्लाह ताला का हुक्म माने। ये हमेशा लड़ाई चल रही होती है। आप दूसरों की मदद तभी कर पाते हैं जब आप अंदर की जंग जीत जाते हैं। अल्लाह ताला आपसे ये चाहता है कि अब अल्लाह ताला को हमारी इबादत की क्या जरूरत? अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि अपने आप को और आपके आसपास जितने लोग हैं उनकी जान को, माल को, इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचाना। अल्लाह ताला कहते हैं कि शरीयत मैंने इसलिए उतारी है क्योंकि तुम कमजोर हो।
और तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूं। तुम अगर ये ना करूं तो तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। जिस जिस काम से रोका है उससे इंसान को नुकसान होता है। साइंस या उस पर पहुंची है या पहुंचने वाली है। जिस जिस काम से रोका है उससे या किसी और को नुकसान होता है, किसी और की जान को नुकसान। अल्लाह ताला इतनी बड़ी, उसे हमारी क्या जरूरत नहीं जरूरत। आप तो नमाज तो हमें पढ़ने का हुक्म ही नहीं, हमें तो कायम करने का हुक्म है। क्योंकि आपकी जो असलियत है उससे आप किसी वक्त के लिए कनेक्ट होते हैं। जैसे कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट होता है तो वायरस सारा उससे साफ हो जाता है। तो ये जितना निजाम बनाया है ना, चाहे रोजा हो चाहे हज हो, उसकी हकीकत को आप समझेंगे तो आपको पता होगा ये तो सारा मेरे फायदे के लिए बताया गया है। मैं ही पागल था जो नहीं समझ पाया इनको। तो तीसरी चीज आपको क्या कहा, अपनी लोगों की जान, माल, इज्जत, जरूरतमंदों की, यतीमों की, मिस्किनों की, उसका ख्याल रखना। क्या मांग रहा है हमसे अल्लाह ताला? क्या ये आसिफ साहब ये वो चीज नहीं है जो आमतौर पर भी इंसान को करनी चाहिए? करनी चाहिए, मेरा ख्याल है मुसलमान ना भी हो तो करनी चाहिए, करनी चाहिए। बुनियादी फितरत की चीजें हैं और करते हैं लोग, अच्छे लोग करते हैं। तो जब आपने इस आसमान और जमीन को स्टडी किया और पहचान लिया का रब है, फिर उसकी इताअत करनी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको जो भी हुक्म देगा वो आपकी भलाई के लिए होगा। अल्लाह ताला को हमारी क्या जरूरत है? हाँ ये है कि मेरे पास इल्म कम है, मुझे वो अंदाजा नहीं होता कि ये क्यों मेरे फायदे में, मुझे लगता है कि ये मेरे नुकसान में है। वो मेरे फायदे में होती है क्योंकि परफेक्ट नॉलेज किसके पास है? वो अल्लाह ताला के पास है। उसके लिए टाइम ये नहीं है कि उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होना, मुझे नहीं पता है। तो फिर आपने उसकी अनकंडीशनल इताअत करनी है। आपके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है, आप पहचान के कोई रब है, अनकंडीशनल इताअत। जबरदस्त, आपने इतना खूबसूरत बयान किया है ना कुरान को कि मकसद समझ आ गया कि हमने रिसर्च क्यों करनी है। क्योंकि हम रिसर्च करेंगे तो हम आखिर में उस मालिक कायनात तक पहुंचेंगे जिससे हम बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। तो फिर हमें पता चलेगा कि हम उसकी बड़ाई को भी जानेंगे, और फिर ये फिर हम सच में कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जब ये लफ्ज अदा होंगे तो दिल से तारीफ निकलेगी। फिर वो पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्या अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, अगर मैं से कभी ए हकीकत मुंतजिर तू नजर आ लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरे जबिए न्यास में। यानी वो हकीकत मुझे नजर आए तो मेरे सजदे टपके, दिल से टपके। वाह 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 वाह, सोचे ना जरा, वो मजा आएगा फिर उस सजदे का। क्या बात।